अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रेन योर ब्रेन चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी पिछले वीडियोस अच्छी लगी होंगी और आज हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी करेंगे रिवीजन। सो लेट्स स्टार्ट आवर रिवीजन। सबसे पहले हमने पढ़ा था एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें था सबसे पहले अबेकस, नेपियर्स बॉर्न, पैस्कलाइन, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, हॉलर टेस्ट, स्लाइड रूल, मार्क वन। उसके बाद हमने पढ़ा था जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली देयर आर 5 generations of computer. The time period of first generation computer is from 1940 to 1956. Second generation 1956 to 1963, it uses transistor. Third generation uses IC chips. Fourth generation uses microprocessor, which reduce the size of the computer and make it more reliable. Fifth generation, present to beyond, it uses artificial intelligence as well as robots. Then we have discussed about the type of the computers: analog computers, digital, hybrid. Then classification of digital computers: supercomputer, mainframe computer, mini, microcomputer. And then one of the most important topic, which is input and output devices. Let's remind some input devices, which are mouse, joystick, keyboard, microphone, scanner, barcode reader, digital camera, touchscreen. Touchscreen is input as well as output, both at a time. Touchpad. Then we have discussed about system unit: motherboard, microprocessor, arithmetic logic unit, ALU. Then we have discussed about storage devices: hard disk, CD, compact disk, DVD dish, versatile disk, memory card, USB flash. Output devices, in which we have studied about CRT, printer, monitor, types of printer, plotter, speaker. At the last, we have studied about the memory, ROM, RAM, and cache. And the other one is ports and expansion slots. That's all about chapter number 1. Okay, we will move forward towards our new chapter. लेकिन उससे पहले हम ज़रा जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उससे मुतालिक मैंने कुछ इसमें पिक्चर्स ऐड किए हैं, उनको देख लेते हैं। सिस्टम यूनिट है ये, विच इंक्लूडेड प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनमें ये भी हैं जो कॉमन है, यानी कि इनपुट भी हैं डिवाइसेस और आउटपुट बोथ एट द सेम टाइम। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे basic knowledge about operating system, steps which are involved in installation of operating system, office automation software and antivirus software in computer. उसके बाद हम पढ़ेंगे advantages of modern operating system over old operating systems. एक brief सा introduction है इस चैप्टर का, अब मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। When your computers speak different languages, it doesn't speak Spanish or Swedish or Chinese. It speaks in ones and zeros. You can't communicate directly with your computer, but that's where your operating system comes in. The operating system, or OS, is the program that lets you interact with your computer. Together, the operating system and computer hardware form a complete system that determines what your computer can do. There are many different operating systems. Two of the most common ones are Microsoft Windows and Mac OS. Windows comes preloaded on most personal computers, while Mac OS runs on all new Macs. Operating systems aren't just for desktop and laptop computers. Mobile devices run mobile operating systems, like Apple iOS or Google Android, which are designed for interactions with smaller touchscreens. Before downloading a new program or application, be aware that it may not be available for your operating system. Some applications work on all devices, while others only work on certain ones. So get to know your operating system to see how it works and what it can do. चलें अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं।
सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। इंट्रोडक्शन में जो लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कलेक्शन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंट्रोल करती है वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या है? इंटरफेस है बिटवीन कंप्यूटर यूज़र एंड कंप्यूटर। ये क्या करता है? फैसिलिटेट करता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड हेल्प इन डेवलपिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। These are functions of operating system: process management, memory management, input output management, file management, resource management, user management. First of all, we will discuss about process management. Process management is an essential part of operating system. A process is a program in execution. In other computer system, multiple processes are executing concurrently or waiting for their turn to be executed. A process in execution need resources like processing, memory and input output resources. ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि प्रोसेस मैनेजमेंट क्या करता है? ये इसेंशियल पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या करता है? ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम? Process management involves the creation, scheduling, termination of the process by the operating system. It also deals with the resources allocation to the program. ये क्या करता है? प्रोसेस मैनेजमेंट क्रिएट करता है थिंग्स को, टर्मिनेट करता है और प्रोसेसिंग करता है। इसकी एग्जांपल हम ये लिख सकते हैं कि जो स्टेप्स हैं किसी भी काम को करने के लिए, जो हम स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे वो प्रोसेस मैनेजमेंट में आएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस फॉर यूजर्स प्रोग्राम इन द मेन मेमोरी। व्हेन प्रोग्राम आर रन बाय यूजर्स, द ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट पोर्शन ऑफ फ्री मेमोरी टू प्रोग्राम। ये क्या करता है? मेमोरी को खुद ब खुद फ्री करता रहता है और जो हमारे पास नई हमने चीज़ ऐड करनी होती है वो उसमें फिट करता जाता है। मेमोरी मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग and coordinating a computer's main memory. It ensures that blocks of memory space are properly managed and allocated so the operating system, application and other running processes have the memory they need. यानी ये खुद ब खुद क्या करता है? मेमोरी फ्री करता जाता है ताकि हम नई जो चीज़ें हमने ऐड करनी है वो हम ऐड करते जाएं। MS-DOS मेमोरी मैनेजमेंट की एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। मेमोरी मैनेजमेंट क्या है? द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस ऑफ ऑल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अटैच्ड टू द कंप्यूटर। यूजर्स कम्युनिकेट विद कंप्यूटर थ्रू वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एज कीबोर्ड, मॉनिटर, CPU. मैनेजमेंट ऑफ दीज डिवाइसेस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हम चीज़ें कनेक्ट करते हैं ना इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ, वो मेमोरी मैनेजमेंट की इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या करें? अटैच करें कंप्यूटर के साथ और यूज़र जो है वो कम्युनिकेट कर सके इन डिवाइसेस को यूज़ करते हुए कंप्यूटर के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस इनपुट आउटपुट कंट्रोलर टू मैनेज द कोऑर्डिनेट ऑपरेशंस ऑफ ऑल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इसके बाद हम पढ़ेंगे फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है जो ऑर्गेनाइज करता है, स्टोर करता है ट्रैक ऑफ कंप्यूटर फाइल्स एंड फोल्डर्स। Computer files can be document, programs, images, videos, etc. Operating system control the common operations performed on file. These operations include creating, opening, editing, removing, moving, copying, deleting, and searching of files. Next one is resource management. Operating system automatically manage the resources of computer when application programs are executed by the computer user. A short resource management would be acquiring, allocating, and managing resources, individual and their skills, finances, technology, materials, machinery, and other resources that are required for a project. Resource management ensures that internal and external resources are used effectively on the time. Meanwhile, जो resource management होता है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है? जो रिसोर्सेज होते हैं ना कंप्यूटर के उनको मैनेज कर लेता है। मीन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो सकते हैं, माइक्रोफोन, जो चीज़ हम अटैच करते हैं वो क्या है? रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर, वो उसको मैनेज कर लेते हैं। उसके बाद है यूज़र मैनेजमेंट। ये क्या है? एक अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मेंटेनिंग अ सिक्योर कंप्यूटर सिस्टम। इट गिव्स फुल कंट्रोल ओवर कंप्यूटर सिस्टम
to a person known as administrator. Administrator install various programs on the computer for use. He also creates and manage user account. इसमें क्या होता है, यूज़र मैनेजमेंट में एडमिनिस्ट्रेटर का काम आ जाता है, जो क्रिएट करता है, मैनेज करता है सारे अकाउंट्स को. When a user account is created, the user is assigned the username. ये एडमिनिस्ट्रेटर की ड्यूटी होती है कि जो यूज़र हमारे पास आया है, उसने कोई अकाउंट क्रिएट किया तो उसको असाइन करे यूज़र नेम और पासवर्ड. एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को रन करता है और इंस्टॉल करता है कंप्यूटर के अंदर. मीन यूज़र मैनेजमेंट क्या है, इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन दैट enables यूजर्स टू assess and control digital assets such as application, devices, networks and cloud services. इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस. बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस CLI, मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस विच इज़ ऑल्सो नोन एज GUI. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कमांड लाइन इंटरफेस के बारे में. ये क्या है, इन CLI commands are given to the computer with keyboard. It is based on textual input. The user types a command. ओके, इसमें क्या होता है कि जो कमांड है वो यूज़र कीबोर्ड से टाइप करता है. टेक्सचुअल इनपुट क्या करता है, बेस होता है इसका इनपुट, उसको हम टेक्स्ट की फॉर्म में देते हैं. उसके बाद वो कोई भी कमांड क्या करता है, उसको प्रोसेसिंग में लाता है. ये हमारे पास में यूज़ होता था, लेकिन अब भी होता है, बहुत कम होता है, या कहें बहुत कम हो गया इसका यूज़. इसकी भी 2 कॉमन टाइप्स हैं, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम और यूनिक्स. CLI क्या है, डिफ़िकल्ट टू यूज़, क्योंकि इसमें कमांड्स हमें याद रखनी पड़ती थी. किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो कमांड्स हमें चाहिए वो हमें याद करनी पड़ती थी, इसलिए इसको यूज़ करना डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर. इसकी एक टाइप है डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. डॉस क्या है, सबसे पॉपुलर CLI ऑपरेटिंग सिस्टम है. ये क्या करता है, प्रॉम्प्ट डिस्प्ले करता है टू एंटर कमांड्स. यूज़र मस्ट नो द सिंटैक्स ऑफ कमांड. डॉस कमांड आर डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर. ओके, ये बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं, इसकी जो कमांड होती हैं वो याद रखना, इसलिए इसका जो यूज़ है वो अब ख़त्म हो गया है. लेकिन डॉस कमांड स्टिल सपोर्टेड बाय न्यू विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज़ अ सिंगल यूज़र एंड सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम. इसकी कुछ इमेजेस आपके साथ यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं. इसलिए इसको यूज़ करना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसमें हर जो भी हमने कमांड देनी होती है उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक क्या याद करनी पड़ती है, कमांड याद करनी पड़ती है, इसलिए ये यूज़ करना मुश्किल है. ये हमारे पास डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज है. ओके, अब हम पढ़ेंगे यूनिक्स. यूनिक्स क्या है, मल्टी यूज़र CLI ऑपरेटिंग सिस्टम है. जो हमारे पास डॉस था वो सिंगल यूज़र था, और यूनिक्स क्या है, मल्टी यूज़र, which was introduced in 1969. It allows multiple users to run different programs at the same time. यूनिक्स जो हुआ था डेवलप, वो यूज़ करने के लिए हुआ था लार्ज कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर. ये मेन फ्रेम पे यूज़ होता है. इट यूजेस कमांड लाइन इंटरफेस, बट लेटर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाज आल्सो इंट्रोड्यूस. यूनिक्स के अंदर बाद में ग्राफिकल यूज़र को हम यूज़ करने लगे थे, लेकिन पहले हम CLI को ही यूज़ करते थे. ये हमारे पास यूनिक्स है, इसका प्रोग्राम आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है. उसके बाद हम पढ़ेंगे मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस. ये क्या है, प्रेजेंट मेन्यू ऑन द स्क्रीन, यूज़र मेक्स अ चॉइस एंड देन द नेक्स्ट मेन्यू अपीयर्स. द यूज़र मेक्स अनदर चॉइस एंड सो ऑन. यूज़र ने एक क्लिक किया किसी भी ऑप्शन पे, हमारे पास एक स्क्रीन आ जाएगी. फिर उस स्क्रीन के ऊपर आपने किसी ऑप्शन पे क्लिक किया, उसके बाद एक नई स्क्रीन आ जाएगी. मीनवाइल इसके अंदर स्क्रीन यूज़ होती थी. हर ऑप्शन पे आप जिस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास एक न्यू स्क्रीन अपीयर हो जाएगी. मेन्यू ड्रिवन हमारे पास यूज़ होता है मोबाइल फ़ोन में और आईपॉड में. मेन्यू ड्रिवन की एक एग्जांपल है हमारे पास ATM. ATM इज़ एन एग्जांपल ऑफ मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस. इसके अंदर हमें हर लॉन्ग लिस्ट ऑफ मैनुअल कमांड, यानी हमें हर कमांड को, बहुत ज़्यादा लंबी कमांड नहीं होती जिसको हमें याद करना पड़ता है. इसकी भी फर्दर टाइप्स हैं. नॉवेल्स नेटवेयर. नॉवेल नेटवेयर क्या था, मेन्यू ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम था जो यूज़ होता था पास्ट में. इसका फर्स्ट वर्जन रिलीज़ हुआ था 1993 में. ये आपके साथ एक पिक्चर शो करती हूँ, मैं शेयर करती हूँ. नॉवेल नेटवेयर है, ये देखें. इसकी एक पिक्चर फिगर 2.3 में भी है, ये देखें. उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोडोस. प्रोडोस क्या था, अनदर मेन्यू ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वाज यूज्ड ऑन सम एप्पल कंप्यूटर. ये एप्पल कंप्यूटर पे ही सिर्फ यूज़ होता है प्रोडोस इंटरफेस. मेन्यू ड्रिवन क्या है, ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये देख लें.
उसके बाद है हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये कलर स्क्रीन होती है तो इसलिए ज़्यादा पसंद की जाती है। इसके ऊपर आइकन्स होते हैं, मेन्यू होता है जिसके थ्रू हम आइकन्स को पॉइंट आउट कर लेते हैं। GUI क्या है? ग्राफिकल यूज़र कंप्यूटर यूजर टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर। इट यूजेस विंडो, आइकन, मेन्यू एंड पॉइंटर, विम्प। ये इन 4 चीज़ों को यूज़ करता है। ये क्या है? रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ मॉनिटर इन विच इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड। Icon is graphical symbol that represent a file, folder, program, device. To perform a task, the user has to select icon or make choices in menu using a pointing device such as mouse. ये आपके साथ मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये देखें, कलर्ड स्क्रीन है, इसमें हर आइकन है। ओके, इसके बाद हम पहले पढ़ेंगे कुछ एडवांटेजेस ऑफ GUI। इसमें हमारे पास कमांड्स को हमें याद करने की ज़रूरत नहीं होती। ये ईजियर है यूज़ करना और याद करना। मोस्ट ऑफ GUI प्रोवाइड गुड हेल्प फैसिलिटेशन, अलाउ यूजर्स टू रन मोर देन वन प्रोग्राम एट अ सेम टाइम। मैनी एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑल्सो यूज अ सिमिलर इंटरफेस सो इट इज़ ईजी टू यूज़ अ न्यू प्रोग्राम। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये बहुत ज़्यादा मेमोरी लेता है। इसके लिए एक बहुत ज़्यादा फास्ट क्या चाहिए? इंटरफेस चाहिए। एग्जांपल्स हैं हमारे पास GUI की मैकिन्टॉश, लिनक्स एंड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। इनके बारे में भी आगे पढ़ते हैं। जो मैकिन्टॉश है ये हमारे पास क्या है? मैक OS इज़ अ सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय एप्पल इनकॉर्पोरेशन फॉर देयर मैकिन्टॉश कंप्यूटर। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1984। ये सिर्फ क्या है? मैकिन्टॉश एप्पल के ही सिस्टम पे हम इसको रन कर सकते हैं। इसकी भी कुछ इमेजेस मैं शेयर करती हूँ। ये हमारे पास मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद हम पढ़ेंगे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है? फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इंट्रोड्यूस बाय लिनस टॉरवल्ड्स इन 1991। इट इज़ फास्टर बट डिफ़िकल्ट टू यूज़ एज़ कम्पेयर टू मैकिन्टॉश एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ नॉट अ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको आज भी मिलियंस ऑफ प्रोग्रामर्स अराउंड द वर्ल्ड लगे हुए इसको और बेहतर करने के लिए। ये क्या करती है? इसका सोर्स कोड अवेलेबल है नेट के ऊपर फ्री। आप इसको डाउनलोड करें प्रोग्रामर्स और इसको एडिट करें और इसका एक न्यू जो वर्जन है उसको पब्लिश कर दें। मैकिन्टॉश हम इंस्टॉल कर सकते हैं PCs पे, लैपटॉप, नोटबुक, मोबाइल एंड टैबलेट डिवाइसेस। इसके बाद है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है विच इज़ यूज्ड इन माइक्रो कंप्यूटर। It was developed by Microsoft. Many different versions of Windows operating system were developed and used successfully in the past. Some of these versions are Windows 95, Windows 98. ये हमारे पास Windows हैं, Windows 10, 95 XP पे Windows की सारी डिटेल है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और सब कुछ समझ आ गया होगा। और अगर कुछ ना समझ आए तो आप लोग मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।